Hello viewers, welcome to this new video. In this video, we are going to discuss a few numericals on traversing computations. So before starting the numerical, first we will revise. So we have three methods. The first method is Bordage method. We will perform a numerical based on this Bordage method. The second one is transit method, and again the same numerical we will solve from this transit method. And the third one is third rule method. Okay, so again we have a different we will take a single numerical, and that single numerical will be solved by these three methods. So this is the aim of this lecture. So before starting this lecture, we will go to the types of numerical. So first of all, we have only two types of numerical asked in this type of methods. The first one is you have to provide a figure like this. Suppose this is a quadrilateral figure. So you have provide the bearing of these figures, and the bearing of this point like fore bearing and back bearing. So इस तरीके से आपके पास एक टेबल होगी like this. This is the problem number 1 टाइप्स. एक तरीके का प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि इसमें क्या पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पे आपके क्या होंगे, लाइंस होंगी. लाइंस आपकी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए करके होगा, और यहाँ पे आपकी बेयरिंग्स होंगी. ओके, सो यहाँ पे आपकी फोर बेयरिंग होगी एंड दैट इज योर बैक बेयरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक योर फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे. आफ्टर कंडक्टिंग योर चेक, वी आइडेंटिफाई दैट स्टेशंस which is free from local attraction. Okay, so how we check this reading? We know that the relation between fore bearing and back bearing is equal to 180 degree, right? So we check according to that formula, like fore bearing plus minus 180 degree will give the back bearing reading. Okay, so this is the formula for check. After check, we get the error. First of all, we have two things from the check column. The first thing is error on the particular station, and the second thing is which station is free from local attractions. So station, we identify that station which is free from local attractions, right? So based on that station which is free from local attractions, we calculate our fore bearing reading as well as back bearing reading. Okay, तो हम क्या करते हैं कि सपोज फॉर दैट केस, सपोज माना कि सी रीडिंग मेरा क्या है, स्टेशन सी स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस. सो द रीडिंग टेकन फ्रॉम द सी पॉइंट्स विल शो ए करेक्टनेस. तो लाइक जो सी स्टेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बैक बेयरिंग ऑफ बी सी लाइन इज ओके एंड फोर बेयरिंग ऑफ सी डी लाइन इज ओके. बेस्ड ऑन दिस केस, I apply this formula that back bearing is fore bearing plus minus 180 डिग्री. 180 डिग्री को प्लस कब करना है, जब आपका फोर बेयरिंग 180 डिग्री से कम होगा, और अगर फोर बेयरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 180 को माइनस करेंगे, तो इससे हमारा बैक बेयरिंग निकल जाएगा. तो बैक बेयरिंग निकालने के बाद यहाँ पे आपकी बैक बेयरिंग आ जाएगी. अगेन उसके बाद इंटरनल एंगल के हेल्प से हम डीए निकालेंगे, डीए का फोर बेयरिंग निकालेंगे, और फिर से सेम फॉर्मूला लगा के, यही वाला फॉर्मूला लगा के ये टेबल करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरनल एंगल एंड फोर बेयरिंग की मदद से आपको फिगर को सही करना है. फिर क्या करेंगे आप, जब फोर बेयरिंग सही हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, इंटरनल एंगल को चेक करेंगे. इंटरनल एंगल को चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटरनल एंगल को चेक करने के बाद जो एरर होगा 90 डिग्री, एक ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल, और जो आपके इंटरनल एंगल का समेशन होगा
उसको चेक करते हुए हम इस वहाँ पे एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो ये आपका कंपास सर्विंग में वी ऑलरेडी कवर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. सो सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में क्या होगा, बिकॉज वी डील विद द ट्रैवर्सिंग. सो सेकंड टाइप की न्यूमेरिकल में आपको लाइन दी रहती है, ठीक है. एक फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे. सपोज दिस इज ए बी, देन वी हैव सी D, E, and like this A. So this is my figure, okay. So based on this figure, we have a line like AB, BC, CD, DE, and EA, right? And now I have a length of individual line segment. तो AB की जो length होगी वो L1, L2, L3, L4 and L5 होगा. इसके बाद हमें यहाँ पे इसके कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे. क्या दिए होंगे? कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो दीज आर कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स. पर हमारे कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर माय कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, एंड वी सेपरेटली स्टडी दिस पोर्शन ऑलरेडी. सो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर लैटिट्यूड इज length of the line multiply cos theta, where theta is your reduced bearing, where departure equal to length of the line multiply sin theta, where theta again is the reduced bearing of that particular line. For this scenario the AB is L1. तो यहाँ से यहाँ AB L1 है. नॉर्थ पोजिशनिंग में यहाँ दे देता हूँ, ओके, एंड साउथ मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो reduced bearing will taken from the north meridian. So this is my theta. Okay, so I have two component of AB line like this is the first theta which is moved horizontally in the direction of west, and the another one which is moving toward the north direction. तो मैं यहाँ पे इस triangle को complete कर देता हूँ. So this is my parallel line toward the north direction. So ये जो line है इसका length हो जाएगा कितना? इसका जो काम होगा ये होगा आपका sin theta. Okay, this is the length which is horizontal is known as departure. This is my departure. Clear? जो horizontal line होती है departure होगा, और एक vertical line है जो north direction में है, उसका जो formula होगा वो क्या होगा? L1 cos theta, and this is my latitude of line AB. अगर आप कंफ्यूज हो रहे से कैसे निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है. ये थीटा एंगल है, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ओके, और ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. अब आपके पास हाइपोटेन्यूज ये है ए बी लाइन, उसका यहाँ पे थीटा दे रखा है. तो अगर आपकी ये लेंथ L1 दे रखी है तो हमेशा एंगल की डायरेक्शन में जो लाइन होती है उसमें हम कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज द कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय लाइन ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन. सिमिलरली जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसका फॉर्मूले के लिए हम क्या होता है? साइन थीटा यूज करते हैं. तो आपको हमेशा ये याद रखना है. तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड किया हो जाएगा? यहाँ पे हमें L1 लैटिट्यूड, D1 डिपार्चर, L2, L3, L4, L5, D2, D3, D4 and D5. So this is the input of the question. This is the second type of questions, and in this questions they will ask you that you have to correct the traversing. Okay, you have to correct this traversing. First of all, you just correct the internal angle with the help of forebearing and back bearing. Then you move to this procedure. Procedure is the type 2 question. In this type 2 question, you will have this angle theta for different line from the north or the south directions, which is known as reduced bearing. After that reduced bearing, you will able to identify the latitude and departure of that particular line, and that latitude and departure are known as consecutive coordinates. So consecutive coordinates calculation will be done by you guys. After that, you will sum up these latitude and departure. Clear? So after the sum up of these latitude and departure, if the summation of latitudes is equal to 0 and summation of this departure column is equal to 0, that means your traverse is completely closed and there is no error. Okay, but if it is not equal to 0,
the summation of the column 4 or the column 5th, which is departure column, is not equal to 0, then you have a closing error, and that error you have to eliminate with the help of Bowditch method, transit rule, and third rule method, right? So in this lecture I have a numerical for you, and this is my numerical. Okay, in this numerical you can see that this is my column 1, which represent the line, the same line segment which we covered previously, and we have the column number 2, which gives the length of the line in the form of meter. So put here meter. Consecutive coordinates, we already know that these consecutive coordinates are latitude and departure. So this is my 3 column and 4th column, but this is the single unit. Okay, this is my single unit. After that I have another single unit, which is correction column. So this correction column represent again latitude and departure, and these are my corrections in latitude and departure. After corrections we have corrected consecutive coordinates in the form of latitude and departure. So my final aim is to identify the latitude and departure of the particular line after the calculation of error. So for that case I have just point here 5 column, 6 column, 7th column, and 8th column, and mainly I have this is my first unit, second unit, and we can say this is my A unit, B unit, C unit, D unit, and E unit. So basically this table has 5 unit, and these 5 unit are divided into 8 column. Now we will solve this question by Bowditch method. So first of all we will solve this question by Bowditch method, right? So according to Bowditch method, if there is a closing error, in a figure, in a traverse figure, so we have a formula for correction that, so the correction in latitude and departure, so correction in latitude and correction in departure will be equal to length of that particular line, which is represented by the unit B, divided by total length of the particular figure, or we can say the perimeter of figure, which is the sum of this B, summation of the second column we will identify here. So this is my latitude, this is my summation of all the length from A to B, B to C, C to D, D to E, E to A. So ये हम सारा सम कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय, अब अगर मैं करेक्शन लैटिट्यूड में कर रहा हूं तो यहां पे आएगा टोटल करेक्शन इन लैटिट्यूड. Similarly, for the case of departure, the factor L upon sigma L, length of a particular line to the total length, multiply by summation of departure, right? So this is the Bowditch method. Now I am going to use this formula in this particular table. So you have to take a calculator for that particular purpose. So I have a calculator here. First of all, I just find that where it is right or wrong. First of all, I will just find that either it is free from local attraction or not. So for that case I just sum up these values, like latitude summation कितना है and departure का summation कितना है. For this case I have a calculator like this and just add. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं कॉलम 2 जो है उसका सारे के सारी वैल्यूज का समेशन कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हो 70 प्लस 80 प्लस 43 प्लस 38 प्लस 115, एंड हम इसे फिर से कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है. तो 115 प्लस 38 प्लस 43 प्लस 80 प्लस 70.
So it's give me answer 346. So I just here 346 मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड को ऐड करेंगे। अब देखिए लैटिट्यूड का यहाँ पे साइन दे रखा है पॉजिटिव साइन, मतलब इट इज टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब इट इज टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है तो मतलब साउथ की तरफ है, माइनस है साउथ की तरफ है, यहाँ पे ये प्लस में है तो नॉर्थ की तरफ है। इन केस ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन and it is moved in the direction of east west direction. So if it is positive, it means the departure of that AB line will be moved in the direction of east, where if it is negative then it is known as moving toward the west, plus toward the east, again here plus toward the east, here plus toward the east. So इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। But I think we have a little bit corrections here. So that correction is that this is the negative value, right? This is your negative value. Please correct the questions. So just add this value according to the sign. तो latitude को add करने के लिए 21.5 प्लस, अब प्लस क्या है यहाँ पे 114.15, राइट। तो ये हमने प्लस कर दिया। अब हम इसको इक्वल करेंगे, फिर हम करेंगे माइनस। माइनस क्या क्या है हमारे पास 80.755 माइनस 41 माइनस 14.25। अगर हम इसको इक्वल करेंगे सो द अवर आंसर इज माइनस 0.355 एंड आई जस्ट राइट हेयर दैट इज माइनस 0.355, राइट। अब हम चलेंगे डिपार्चर की तरफ, और डिपार्चर में हमने ध्यान दिया है कि हमारा जो पहला डिपार्चर है वो -64 है, तो उसके हिसाब से ही हमें काम करना। तो -64.45, उसके बाद अगेन -5.25, then we have plus 13.55 plus 35.15 plus 22.315, राइट, इक्वल टू करेंगे। सो ये हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। So same thing we will do for the column 4, which is departure value. Please note that I have changed the departure of AB line, which is -65.45. तो ये हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। तो अब आप देखिए -65.45, राइट, इक्वल टू कर देते हैं, माइनस में है, इसको -5.25, देन वी हैव प्लस 13.55 plus 35.15 plus 22.315. Now I have to just equal this value, and my departure, the summation of all departure is equal to you can see that is it equal to 0.315, right? So this is my departure value and this is my latitude value. So I can say that if my summation of latitude and departure is not equal to 0, then I have a closing error, right? So I have to correct this closing error. I have to distribute this closing error. How will you distribute this closing error? This is given by the three methods, and the first method is Bowditch method, and in this numerical I am just going to the Bowditch method. After that we will go to the another method. सो अकॉर्डिंग टू बोर्डिच ने ये कहा है कि ये जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर है ना, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, जो आपके इंडिविजुअल लाइन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मुझे बताइए, अगर दिस इज माय एरर -0.355 माय एरर, सो करेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो करेक्शन होना चाहिए दैट विल बी द पॉजिटिव 0.355, और सिमिलरली डिपार्चर में करेक्शन कितना होना चाहिए -0.315, राइट। सो इतना मेरा क्या होना चाहिए, दिस इज माय करेक्शंस होना चाहिए। अब ये करेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बोर्डिच ने कहा है, देखो बोर्डिच के फॉर्मूले में क्या है, बोर्डिच ने कहा है कि जो करेक्शन होगा वो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में ही किया जाएगा। अब लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का काम ये है कि कैसे किया जाएगा, इंडिविजुअल लाइन का, जो भी इंडिविजुअल लाइन होगी उसके लैटिट्यूड में कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा एक फैक्टर पे, और वो फैक्टर ये है लेंथ ऑफ द लाइन टू द टोटल लेंथ। सो
मैं अभी एक के लिए इसको परफॉर्म करता हूँ, आपको इसको समझ में आ जाएगा। सो फॉर द करेक्शन ए बी के लिए मुझे करेक्शन करना है, तो ए बी के लिए करेक्शन कहाँ होगा, लैटिट्यूड पे भी होगा एंड डिपार्चर वैल्यू में भी होगा, राइट। सो लैटिट्यूड में जो करेक्शन होगा वो उसका कितना होगा, प्लस करेक्शन होना चाहिए, तो 0.355, ठीक है, मल्टीप्लाई ए फैक्टर। अब ये फैक्टर किसने दिया है, बोडिच ने दिया है, बस यही याद रखना है। बोडिच का जो फैक्टर है वो क्या है, वो बोडिच का फैक्टर क्या कहता है, L अपॉन समेशन ऑफ ऑल लेंथ, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ए सिंगल लाइन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द ऑल लेंथ। For that particular case, I just rub and I just put the length of my AB line. Length of my AB line is 70, right? आप देख सकते हो AB line की लेंथ 70 है और टोटल लेंथ हमारी क्या है, हमारी टोटल लेंथ है 346। जब हम इसको सॉल्व करेंगे we will get our answer in terms of positive because हमारा करेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव करेक्शन को ऐड कर देना है, राइट। And on solving this I will get my answer like 0.072. okay, so I just put here 0.072, so this is my answer in terms of correction। बट अभी मेरा पूरा आंसर नहीं निकला है, मुझे क्या निकालना, करेक्टेड लैटिट्यूड निकालना है। तो 21.5 प्लस ये वैल्यू कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 21.572, 21.572. This is my correct latitude for the line AB, right? Now I move for the departure value. So if you see the table, you will get your departure वैल्यू का जो करेक्शन है वो क्या है, -0.315, राइट। मल्टीप्लाई फैक्टर, देखिए फैक्टर दोनों में ही सेम है, फैक्टर क्या होगा डिपार्चर का, लेंथ ऑफ ए बी विच इज 70, लेंथ ऑफ ए बी विच इज 70 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ आपकी क्या है 346 है। देखिए ये फैक्टर क्या होगा, बोडिच ने दिया हुआ है, बस यही फैक्टर बोडिच के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। यही फैक्टर हम चेंज करेंगे तो हमारा ट्रांजिट रूल हो जाएगा, इसी फैक्टर को हम चेंज करेंगे तो हमारा थर्ड रूल हो जाएगा। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, वी विल गेट माइनस, देखिए माइनस इसलिए क्योंकि करेक्शन हमारा माइनस में होगा, और कौन सी करेक्शन होगा, करेक्शन कहाँ हो रहा है, डिपार्चर ऑफ ए बी लाइन पे होगा। तो जो भी यहाँ पे माइनस दे रखा है इसी में हमें और कम करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.064, और राइट। तो ये जो होगा इस वैल्यू में जो -65.45 है, इसमें आपको माइनस करना है 0.064, एंड व्हेन यू माइनस दिस वैल्यू दिस विल ऑटोमेटिकली ऐड, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और जो अब साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज होकर आगे लाइक 65.514, ठीक है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपका यही निकलेगा। तो आपने यहाँ से देखा कि डिपार्चर को आपने इसमें से ये जब ऐड किया तो आपकी ये वैल्यू आई, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस पूरी टेबल को फॉर BC लाइन, CD लाइन, DE लाइन एंड EA लाइन के लिए सॉल्व करना है, राइट। तो मैं अब आपके सामने एक कंप्लीट टेबल रख रहा हूँ जो कि करेक्ट करी गई है। अब मुझे इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करके नाउ आई एम गोइंग टू BC लाइन। देखिए BC लाइन के लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड अगेन वो तो सेम ही रहेगा एंड डिपार्चर भी सेम रहेगा, सिर्फ जो चेंज होगा, जो वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू हमारी लेंथ ऑफ BC लाइन चेंज होगी, एंड दैट इज माय BC लेंथ इज हेयर 80। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो अगेन दैट ये प्लस साइन है तो प्लस में आएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में डिपार्चर आएगा, तो नेगेटिव मैंने यहाँ पहले ही रखा है, यहाँ प्लस पहले ही रखा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.083, और यहाँ पे आएगा -0.073, राइट। तो बस यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख रहे हैं 0.083 माइनस 0.073। ऑन सॉल्विंग दिस मतलब 80.755 प्लस ये, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी थोड़ी कम हो जाएगी, पर साइन किसका आएगा, माइनस का है, बिकॉज बड़ा वाला जो डिजिट है वो माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 80.672 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है -5.25 -5 चलो आपके लिए इसको करके दिखा देते हैं, -5.25
और -0, पहले हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ए वैल्यू इनसाइड द कैलकुलेटर. सो -5.25, राइट, एंड -0.073 gives the value of 5.3 -5.325. तो यहाँ पे हम यही कर देते हैं, राइट. तो इसी तरीके से मुझे ये सारी टेबल क्लियर करनी है, ठीक है. अब आप देखिए कि मैं इसी तरीके से सी डी डी ई एंड ई ए को भी पूरा का पूरा फिल कर रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस इज कंप्लीट टेबल फॉर लैटिट्यूड लाइक दिस लैटिट्यूड. हमारे पास जो करेक्शंस आया है विद द फॉर्मूला ऑफ लाइक लेंथ. अब यहाँ देखिए सी डी के लिए क्या हो जाएगा, 43 यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज द 43 डिवाइडेड बाय टोटल, तो वही रहेगा, बाकी ये चीज़ भी वही रहेगी. तो इसके बाद जो सॉल्यूशन आया वो इस तरीके से आया. डी के लिए 43 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, राइट, 38 हो जाएगा. एंड ई के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है इस तरीके से, डिनोमिनेटर सेम है और जो आगे का लैटिट्यूड की वैल्यू है वो भी हमारी प्लस सेम है. इस हिसाब से हमारे जो वैल्यूज आई है वो कितनी आई है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, राइट. उसके बाद हमने डिपार्चर के लिए फाइंड किया, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि डिपार्चर की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 13.55. अब इसको मुझे करेक्ट करना है. तो डिपार्चर में मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पता है डिपार्चर में क्या है. आई हैव दिस, डिपार्चर में क्या है मेरे पास, ये चीज़ मेरा फिक्स है, डिनोमिनेटर मेरा फिक्स है, सिर्फ चेंज होगा न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू द लाइन. अगर मेरी लाइन सी डी होगी लाइक सी डी, तो ये वैल्यू हटाओ, ये होगा सी एंड डी, ठीक है. तो सी डी के लिए मेरा 80 की जगह पे क्या आ जाएगा, 80 की जगह पे आएगा 43. जो इसको सॉल्व करके आंसर आया वो कितना आया मेरा, वो मेरा आंसर आया है -0.039. सिमिलरली फॉर डी के लिए जो डिपार्चर का करेक्शन आया है वो इतना आया है. एंड द फाइनली ई के लिए डिपार्चर करेक्शन इतना आया है. अब हमने क्या करा है, इस वैल्यू को इसके साथ क्या किया, प्लस किया है, इस वैल्यू को इसके साथ प्लस किया और ये वाले को हमने इसके साथ प्लस किया है. वी विल गेट आंसर लाइक दिस. सिमिलरली इफ वी add these values like this one to this one to this and this one to this column, we will get this type of value. So ये जो हमारा करेक्टेड वैल्यू आया है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का, एक तो ये हमें समझना है कि आ गया, दूसरा हमारा करेक्शन है. अब आपको मैं एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, we will solve this. अभी क्या है कि हमने सिर्फ यहाँ का समेशन निकाला. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द समेशन ऑफ फिफ्थ कॉलम. तो अभी मैं आपके सामने फिफ्थ कॉलम का समेशन निकाल के दिखाता हूँ. 0.72 प्लस 0.0083 प्लस 0.044 प्लस 0.038 प्लस 0.118. we will get the answer like okay, we have something wrong done. कैलकुलेटर में गलत हो गया, फिर से करते हैं. 0.072 प्लस ओके 0.083 प्लस 0.044 प्लस 0.038 प्लस 0.118 and now we get the right answer and that is 0.335. अब देखिए लैटिट्यूड में जो पहले कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का समेशन था वो माइनस में था. नाउ वी हैव ए करेक्शंस इन पॉजिटिव. तो हमने क्या किया, इसी नेगेटिव वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर प्लस 0.355 है, राइट. अब हम सिक्स्थ कॉलम का समेशन करके दिखाते हैं आपको. तो सिक्स्थ कॉलम के समेशन के लिए क्या होगा, -0.64 माइनस 0.073 माइनस 0.039 माइनस 0.034 माइनस 0.105 and I think it is little bit wrong here. Let's do this again. ये प्रोसेस हमें बार बार करनी पड़ती है क्योंकि हमें देखना पड़ता है कई बार चीज़ें हमारी. देखिए यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, 73 माइनस 0.039 माइनस 0.034 माइनस 0.105, राइट.
अब देखिए हमारा आंसर सही आ गया है, आप देख सकते हो सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पुट करा है और इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ -0.315 आया। और अगर आप कॉलम 4 को देखेंगे डिपार्चर का समीशन वो पॉजिटिव 0.315 था। तो मैं अगर इसको यहाँ पे लिख सकूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा -0.315। एक और बार आप कैलकुलेटर में इसे देख सकते हैं, राइट। तो फाइनली हमने करा क्या यहाँ पे, हमने जो डिपार्चर और लैटिट्यूड में एरर था नेगेटिव का उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। अब इसके करने के बाद हमारा क्या फायदा होगा, फायदा हमारे 6th और 8th कॉलम में दिखाई देगा। नाउ यू हैव टू परफॉर्म द समेशन ऑफ 7th कॉलम एंड 8th कॉलम, ठीक है। तो 7th कॉलम का समेशन करेंगे हम और 8th कॉलम का समेशन करेंगे हम कैलकुलेटर में। सबसे पहले करेक्शन फॉर CD, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे 956 है, ठीक है। तो 956 है ये। तो अभी हमने इसको करेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हो जैसे अभी कैलकुलेटर पे करके दिखा देते हैं हम आपको। क्या है हमारा CD लाइन का क्या है, पहले से माइनस कर देते हैं, -41। फिर उसमें हमें कौन सा करेक्शन लगाना है, ये वाला +0.044, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं तो ये -40.956 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बाकी सबको ऐड कर देते हैं, -14.212 -80.672 +21.572 +114.268 लीजिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब लैटिट्यूड में कोई भी एरर नहीं है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, लैटिट्यूड 0। अब डिपार्चर का भी हम यहाँ पे करके देखते हैं। BC में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डिपार्चर -5.25 है, उसको हमें माइनस डिपार्चर के साथ क्या करना है, ऐड अप करना है। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो लेट्स सी दी वैल्यू में क्या चेंज आता है, -5.25 एंड -0.073 gives the value 5.323, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको गड़बड़ कर दिया था, 323 लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको फिर से ऐड करते हैं। सो दिस इज द वैल्यू और इन द माइनस इक्वल टू, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। सो -65.514 -5.323 +13.511 +35.116 +22.21। नाउ इट इज 0, ओके। सो ये आपको हमेशा करना है, आपको डिपार्चर इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है और टेबल कंप्लीट आपकी तब होगी जब आपका नीचे का ये जो लास्ट वाला रो है इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे प्रोसेस अच्छे से करो तो आप उसको कॉपी में अच्छे से कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द बोर्डिच मेथड। बोर्डिच मेथड में बस आपको एक फैक्टर याद रखना है कि इंडिविजुअल जो लाइन है, इंडिविजुअल लाइन की जो लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल पेरीमीटर। तो ये आपका बोर्डिच मेथड है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विद अनदर formula which is your transit rule. So this is my numerical, the same table I have, only the values of length, my second column. In my first column we have a line, second column length, third column gives me the reading of latitude, fourth column give me the reading of departure. So this unit, up to this unit the question will be asked in your examination, okay. And now you have to do this 2 unit. First is your correction value and the third is your corrected value of consecutive coordinates. तो इस तरीके से नाउ इसको हम कर रहे हैं ट्रांजिट रूल से। ट्रांजिट रूल, अब ट्रांजिट रूल में बोर्डिच रूल की तरह ही करना है, लेकिन ट्रांजिट रूल में थोड़ा सा चेंज है। ट्रांजिट रूल में जो हमारा सेकंड कॉलम है, देखो बोर्डिच रूल में सेकंड कॉलम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेंथ ऑफ द लाइन टू द टोटल लेंथ। अब ट्रांजिट में ये सेकंड कॉलम नलिफाइड हो जाता है, मतलब लेंथ
से हमें कोई भी मतलब नहीं है किसी भी लाइन से, ठीक है, हमें सिर्फ मतलब है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर से। सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस आपको कॉलम 2 को एलिमिनेट कर देना है। अब ट्रांजिट रूल के अकॉर्डिंग इफ यू वांट टू करेक्ट latitude of any line like AB अभी के लिए, ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपका जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ AB लाइन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल लैटिट्यूड ऑफ फिगर, ठीक है, मल्टीप्लाई total latitude multiply the error right। सो ये यहाँ पे इन्होंने इस चीज को बोला है। तो अब हम इस चीज को समझते हैं कि इसे करना कैसे है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए एरर क्या होगा। अब आप कुछ बच्चे समझ रहे होंगे क्वेश्चन में कि देखिए सर ने बोला है लैटिट्यूड को हम सम करना है, ठीक है, तो टोटल सम जब हम करते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड का, तो वही हमारा समेशन लैटिट्यूड एंड ये समेशन डिपार्चर, वही हमारा क्या होता है, एरर होता है। बट ये जो टोटल समेशन यहाँ नीचे करना है ना, इसमें आपको साइन कन्वर्जन नहीं करना है। दिस इज योर अरिथमेटिक सम करना है, राइट। अब अरिथमेटिक सम करना है हमें यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका साइन के अकॉर्डिंग समेशन कर रहे हैं, तो जिससे हमें एरर मिलेगी वो हमारी क्या होगी, एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर, ठीक है। तो अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इनका समेशन करो विद द हेल्प ऑफ दिस साइन, वी विल गेट, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो हमारा आंसर क्या आया था यहाँ पे -0.355 आया था, राइट। और डिपार्चर कितना आया था हमारा 0.315 आया था। तो ये हमारी एरर थी, ये हमारी क्लोजिंग एरर है। अब ये हमारी क्या है, एरर इन लैटिट्यूड, एरर इन डिपार्चर है। बट अब आपको क्या करना है, अरिथमेटिक सम करना है, अरिथमेटिक सम ऑफ डेल्टा लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, देखिए मैं अब आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। तो अरिथमेटिक सम का मतलब यह है विदाउट कंसिडरिंग द साइन ऑफ द लैटिट्यूड कॉलम। तो कॉलम 3 को आप देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 21.5 प्लस 80.755, कोई माइनस साइन मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, प्लस 41, कोई माइनस साइन इंक्लूड नहीं किया, प्लस 14.25 प्लस 114.15, ये हमारा टोटल लैटिट्यूड का समेशन है विदाउट कंसिडरिंग योर साइन। सो 2271.655, राइट। इसी तरीके से हमें डिपार्चर का साइन निकालना है, टोटल डिपार्चर का सम निकालना है विदाउट कंसिडरिंग एनी साइन। तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में करके दिखाते हैं आपको अगेन। सो दिस इज माई -65.45 है, लेकिन मुझे माइनस साइन लेना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 65.45 प्लस 5.25 प्लस 13.55 प्लस 35.15 प्लस 22.315, राइट। एक बार हम ऊपर देख लेते हैं 65.4, 5.25, 13.55, 3.14, 22.1, राइट। तो ये हमारा आया 141.715, 141.715, राइट। तो अब क्या हो गया, आपका फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, फैक्टर अभी देखिए अकॉर्डिंग टू द, अब मैं ए बी करेक्शन कर रहा हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू करेक्ट लैटिट्यूड ऑफ ए बी, तो इस कॉलम में आएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये लैटिट्यूड है, ये करेक्शन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। जब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो लैटिट्यूड में जो भी करेक्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, राइट। अब यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस वाले कॉलम में जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, सॉरी, क्योंकि एरर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपने बाय डिफॉल्ट ही सब में पहले से ही प्लस प्लस कर देना, ठीक है। इज इट वेरी सिंपल, राइट, पहले वाले की तरह। अब फैक्टर देखिए, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ ए बी एंड डिपार्चर ऑफ ए बी। तो क्या कहता है फॉर्मूला ये कहता है एक फैक्टर है लैटिट्यूड ऑफ द लाइन ए बी का लैटिट्यूड कितना है 21.5 डिवाइडेड बाय टोटल अरिथमेटिक सम ऑफ द लैटिट्यूड विच इज 2, थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम इसको,
ये हमारा क्योंकि सेम रहने वाला है इसीलिए इस फैक्टर को 271.655 और ये ठीक है। तो यही चीज अब हमारी हर किसी में चेंज होगी, बाकी सारा फैक्टर हमारा 0.355, राइट। तो ये इस तरीके से हुआ। जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट आवर आंसर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट लाइक दिस द वैल्यू ऑफ योर लैटिट्यूड ऑन द सॉल्विंग दिस। फिर हम क्या करेंगे, वी विल चेंज ओनली द वैल्यू ऑफ दिस अपर पोर्शन, न्यूमरेटर को हम चेंज करके यहाँ पे क्या कर देंगे, लैटिट्यूड ऑफ द अनदर वैल्यू विच इज 80.755। हमें यहाँ पे साइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। करेक्शन के लिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं लैटिट्यूड में, डिपार्चर में हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एरर है वो पॉजिटिव है डिपार्चर में और नेगेटिव एरर कहाँ है, लैटिट्यूड में। इसी वजह से ये हम ऑलरेडी करा, तो फिर हमारा ये आया। इस तरीके से हमने सारी लैटिट्यूड निकाली। अगर हम इसका समेशन करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू +35486 के आसपास आ रहा है विच इज नियर टू दिस वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, समेशन एकदम इक्वल कर दिया है जो हमारा एरर है, राइट। तो ये करेक्शन हमने यहाँ पे डाला और ये एरर के इक्वल कर दिया। इसी तरीके से हम डिपार्चर वाली टेबल को भी फिल करेंगे। So when we solve the departure value, so departure value will be changed like this is, okay. So first of all for AB line, the AB line, the departure is 65.45. The total departure arithmetic sum is 141.715 multiplied by the error in departure which is 0.315. After solving this we will get the answer minus 0.145. okay, so these values are in minus. After we add this we will get 0.3143. ठीक है, सभी को निकाला हमने इसी फॉर्मूले से, बस हमने ये वैल्यू न्यूमरेटर हम चेंज करते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्चर। तो इस तरीके से हम इसको समेशन करेंगे तो इट इज 0.314301136 इसके आसपास है, बट यही हमारा क्या है 0.315 के आसपास है। तो ये राउंड ऑफ करके हम इधर 0.315 के लिए आए आसपास, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया नाउ आवर करेक्शंस इज इक्वल टू माय एरर बोथ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन वैल्यूज में इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बिकॉज दिस इज द प्लस साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। और जो बाकी है जैसे यहाँ पे उसको हम इसके अकॉर्डिंग, नेगेटिव जो साइन है यहाँ पे उसके साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करते हुए करेक्टेड डिपार्चर एंड लैटिट्यूड वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर देंगे, राइट। और उसके बाद अगर आप उसका समेशन करोगे तो उसका समेशन आपका क्या आएगा, 0 आएगा बिकॉज यू ऑलरेडी कवर दिस करेक्शन एज वेल एज द एरर, तो वो 0 आएगा। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पीपीटी में ये शो कर देता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड। प्लीज चेक दिस वैल्यू। सो वी कैलकुलेट द ऑल वैल्यू लाइक दिस। दिस इज माय लैटिट्यूड वैल्यू, this is my latitude value. On the addition of these value we will get the latitude, and this is my departure value with the sign, and if I minus these value we will get the departure. Okay, now I have to sum up the corrected latitude and we will get 0.04 into 10 to the power -4। तो ये जो वैल्यू है ये नेग्लिजिबल के आसपास है। सिमिलरली डिपार्चर का अगर आप समेशन करेंगे तो हम करेंगे, हमें जो मिलेगा वैल्यू वो आपका मिलेगा 7 multiply 10 to the power -4। तो 7 multiply 10 to the power 4 अगेन इस comes to the 0 वैल्यू। सो यहाँ पे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का समेशन 0 हो गया है। सो दिस इज फ्री फ्रॉम माई एरर। सो दिस इज द ट्रांजिट रूल वेयर we don't take the weightage of the length of a particular line, we take only the weightage of latitude and departure of that line, right। now I have a third rule and which is my third rule method। तीसरा मेथड जो है हमारा वो थर्ड रूल मेथड है। अब उसमें हमें जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर है इसमें जो नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइंस है इसको हमें अलग से करना पड़ता है। उसमें भी हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थिंग में, एक साउथिंग में, ईस्टिंग में एंड वेस्टिंग में। सो ये जो थर्ड यूनिट है, जो थर्ड कॉलम है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ में। और जो फोर्थ कॉलम है डिपार्चर का वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा आपका ईस्ट एंड वेस्ट में, ठीक है। तो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड रूल मेथड। सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ थर्ड रूल मेथड वी विल कन्वर्ट माय टेबल इन सच ए डिफरेंट फॉर्म। लाइक नेगेटिव वाली वैल्यूज को हम एक दूसरे कॉलम में
पुट कर देते हैं, लाइक एक कॉलम हमने बगल में बनाया और उसमें हमने ये नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अभी मैं बताऊंगा आपको इसका क्या हेल्प होगा। तो आपको पता है कि हमने क्या कहा था कि जो हमारी वैल्यूज़ होंगी उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, राइट। सो अब ये जो लैटिट्यूड है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पॉजिटिव वाले लैटिट्यूड जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है दैट विल गोज टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसको हमने कह दिया नॉर्थिंग, राइट। नॉर्थिंग की तरफ है। और एक है आपका नेगेटिव वाले को हमने इस डायरेक्शन में किया, तो ये हमारी है साउथिंग डायरेक्शन, क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये टेबल बिल्ड कर दी। आप चाहो तो अब इसके आगे का नेगेटिव साइन रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली हमने डिपार्चर को भी दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो इसके नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हम बगल में राइट हैंड साइड कॉलम में हम उसको फिल कर देते हैं लाइक दिस। और बाकी हमारे सब पॉजिटिव है। सो जो डिपार्चर है वो भी हमारा अगर पॉजिटिव है इट्स मीन इट इज गोइंग टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, तो हम इसको ईस्टिंग कह सकते हैं, राइट। और जो नेगेटिव वाले हैं वो हमारा टुवर्ड द वेस्ट जाएगा, तो हम उसको वेस्टिंग कहेंगे। सो ये इस तरीके से अब आप इसका नेगेटिव साइन को रिमूव कर दीजिए, राइट। सो बाकी आप जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या कर रहे हैं अभी के लिए एलिमिनेट कर दे रहे हैं। करेक्टेड लैटिट्यूड को हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्थिंग में, फिर साउथिंग में। डिपार्चर को भी हम पूरा का पूरा डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, और डिपार्चर को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हमारा ईस्टिंग है और एक हमारा वेस्ट है। सिमिलरली करेक्टेड रीडिंग विल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। द फर्स्ट वन इज नॉर्थिंग, साउथिंग। डिपार्चर अगेन द टू फॉर्म, ईस्टिंग एंड वेस्टिंग, राइट। अब यहाँ पे हम आपके लिए बताते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हम इस टेबल को समझते हैं। हमें अगेन इस टेबल में लेंथ गिवन दे रखी है। हमारे पास थर्ड यूनिट जो है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की है, दिस इज माई थर्ड यूनिट। उसमें भी जो मोटा मोटा हिसाब है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड द अनदर यूनिट इज अ पार्ट ऑफ डिपार्चर, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट के बाद हमारे पास एक अलग से कॉलम है वो यहाँ तक है, ठीक है। ये हमारा करेक्शन के लिए है, तो करेक्शन को भी हमने फिर दो यूनिट में डिवाइड किया है, लैटिट्यूड पार्ट एंड डिपार्चर पार्ट। उसके बाद हमारी करेक्टेड वैल्यू, आफ्टर द करेक्शन वी हैव ए करेक्टेड वैल्यू एंड दिस इज माय लैटिट्यूड पार्ट एंड डिपार्चर पार्ट, सो 4 एंड 5th। सो इस तरीके से आपको टेबल वहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे करेक्शन करना है, तो सबसे पहले आपको अगर करेक्शन करना है तो सबसे पहले समेशन करना है। समेशन ऑफ नॉर्थ आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली समेशन ऑफ साउथ, summation of east and summation of west. So we will find the summation of these 4 parameters. So the summation of northing will be 21.5 plus 114.15 and that is equal to 135.65. तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 135.65, राइट। इसके बाद हमारा साउथिंग का समेशन करेंगे एंड साउथिंग का समेशन 80.755 प्लस 41 प्लस 14.25 एंटर करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 136.005। ईस्टिंग का समेशन करेंगे, ईस्टिंग का समेशन के लिए 13.55 प्लस 35.15 plus 22.315 and we will get the answer 71.015 and the last one is westing. After the summation of these value we will have a certain pattern which is related to my third rule method. So 70.7. So this is the summation. And we know that the westing is negative, easting is positive, southing is negative and northing is positive. तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल सकते हैं और वही हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। एरर इन नॉर्थिंग टू द साउथिंग और एरर इन
ईस्टिंग टू द वेस्टिंग। तो हमने ईस्टिंग और वेस्टिंग को तो ऑलरेडी डिपार्चर कहा है, नॉर्थिंग और साउथिंग को हमने लैटिट्यूड कहा है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं और देखते हैं हमारा एरर कितना आया है। सो आफ्टर द कैलकुलेशन with the help of these signs we will get our error in latitude which is minus 0.355। अब क्योंकि हमारी वैल्यू सारे टाइप्स के मेथड में सेम है तो वो एरर भी हमारी सेम होगी। तो आप देख सकते हो जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी के एरर है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो ये एरर है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली 50% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी करेक्शन के फॉर्म में करी जाएगी टू द नॉर्थ एंड साउथ एंड टू द ईस्ट एंड वेस्ट 50% के फॉर्म में, ठीक है। बराबर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो करेक्शंस होगा नॉर्थ में वो प्लस 0.355 डिवाइड बाई 2 और साउथ में भी क्या करेक्शन होगा प्लस 0.355 divided by 2. Similarly, in case of easting, I have negative 0.315 divided by 2 and westing negative 0.315 divided by 2. So this is my correction value, right? अब ये करेक्शन वैल्यू तो मेरी एक फैक्टर होगी, ठीक है। बट यहाँ पे नॉर्थिंग की वैल्यू हर कहीं पे अलग अलग है, साउथिंग की वैल्यू अलग है। तो अब हम उसे कैसे करेंगे? तो सपोज नॉर्थिंग में मुझे करेक्शन करना है। इफ़ आई एम डूइंग नॉर्थिंग ऑफ एनी लाइन लाइक ए बी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि नॉर्थिंग ऑफ लाइन ए बी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल नॉर्थ एंड मल्टीप्लाई द एरर फैक्टर। अब एरर फैक्टर यहाँ पे कितना निकाला हमने? एरर फैक्टर आप देख सकते हो जो नॉर्थिंग के लिए हमने एरर फैक्टर निकाला है वो ये है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली 0.3552, ठीक है। तो एरर हमारा यहाँ पे नेगेटिव में था, प्लीज नोट डाउन दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने इसे पॉजिटिव कर दिया। तो इससे हमें हमारा करेक्शन नॉर्थिंग में निकल जाएगा। सिमिलरली साउथिंग के लिए जो वैल्यू होगी साउथिंग ऑफ लाइन ए बी डिवाइडेड बाय टोटल साउथिंग, ठीक है। ये तो एक वेटेज फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई करेक्शन क्या है हमारा यहाँ पे 0.355 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द थर्ड रूल मेथड। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखेंगे लाइन ए बी के लिए और ए बी लाइन नॉर्थ वैल्यू नॉर्थिंग ऑफ ए बी, देखिए हमारे पास ए बी लाइन ये है, नॉर्थिंग क्या है 21.5। सो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 21.5 डिवाइडेड बाय टोटल नॉर्थ की वैल्यू हमारे पास क्या है 135.65, राइट। एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 0.355 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब बी सी लाइन के लिए जो नॉर्थिंग होगी वो हमारे पास है ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा नॉर्थिंग की कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो हो जाएगा नॉर्थिंग का करेक्शन। बट हमारा साउथिंग में जाएगा, सी डी लाइन के लिए साउथिंग आएगा, डी ई लाइन के लिए साउथिंग आएगा, ई ए लाइन के लिए अगेन नॉर्थिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमें पुट करनी है, ठीक है। सो now I am going to solve this with the help of calculator and you will get the final answer. So we will get the value after calculating this formula, we will get the value plus 0.281. Similarly for northing यहाँ पे हम 21 की जगह पे क्या कर देंगे 114.15 कर देंगे, बाकी डिनोमिनेटर में सेम ही है and we correct this value like this one, ठीक है। अब साउथिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि भले ही हमने यहाँ पे फॉर्मूले में साउथिंग ऑफ लाइन ए बी टोटल साउथिंग मल्टीप्लाई द फैक्टर, ये जो फैक्टर है एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, अगर आप ध्यान दें ये नेगेटिव वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है इस तरीके से ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए। अब ये जीरो कब आएगा जब 50% इसका 50% यहाँ क्या किया जाए ऐड किया जाए क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, और 50% यहाँ पे क्या किया नेगेटिव किया जाए क्योंकि ये क्या है बड़ी वैल्यू है। तो आपको बस यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि नेगेटिव किसको करना है पॉजिटिव किसको करना है। तो इसी तरीके से फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखा, तो BC के लिए लाइक फॉर BC साउथिंग ऑफ BC डिवाइडेड बाय टोटल साउथिंग ऑफ लाइन और फिगर मल्टीप्लाई बाय 0.355 डिवाइड बाय 2। तो साउथिंग की जो BC है दैट इज 80.775 डिवाइडेड बाय टोटल साउथिंग कितनी है 136.005 मल्टीप्लाई बाय 0.355 डिवाइड बाय 2। On solving this we will get our value like
0.1053, राइट। अब इसके आगे मैंने नेगेटिव इसलिए डाल रखा है क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है ये बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस वन वैल्यू, तो इसीलिए मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ CD की, तो CD में भी वही सारे फंक्शन होगा। साउथिंग में हमने क्या कर दिया, करेक्शंस सारे नेगेटिव कर दिए। बाकी CD में सिर्फ ये चीज़ हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ये चीज़ हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 80.755 की जगह पे क्या हो जाएगा, सिंपली 41 हो जाएगा, सिंपल। सो दिस विल द आंसर ऑफ CD लाइन, ठीक है, डिपार्चर इन CD लाइन, राइट। सो ऑन कैलकुलेशन दिस वी हैव दिस फॉर्मूला। अब क्या करना है, अब आपको 21 के साथ इसको ऐड करना है और 80.755 के साथ आपको क्या करना है, इसको नेगेटिव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। और जो भी वैल्यू आई आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसी तरीके से सेम 41 के साथ माइनस 0.0535 यहाँ पे आ जाएगा 40.9465, 14.25 minus 0.0185 gives the value of 14.2315, right। और ये हम ऑलरेडी नॉर्थिंग कम कर चुके हैं। 114.15 प्लस 0.1493 गिव्स द वैल्यू ऑफ 114.2993, ठीक है। अगर आप अब यहाँ पे समेशन ऑफ नॉर्थ और समेशन ऑफ साउथ करते हैं और इनका डिफरेंस निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 4 which is near to the zero value. Now the corrections is occurred in your northing and southing, right। अब सिमिलरली हमें ईस्टिंग और वेस्टिंग के लिए भी करना है। अब ईस्टिंग और वेस्टिंग में ध्यान दीजिए कैसे करना है। देखिए ये वैल्यू आप यहीं से समझ लीजिए, ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी इस तरीके से। अब ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो यहाँ हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। और यहाँ पे हमें इसको क्या करना, बड़ा करना, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो वेस्टिंग में जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आप यहाँ पे यहाँ पे आप पॉजिटिव करेंगे और यहाँ पे आप नेगेटिव करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको फाइनल आंसर यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो वेस्टिंग ऑफ लाइन AB, तो AB का हम क्या कर रहे हैं, वेस्टिंग ऑफ AB कर रहे हैं कि वेस्टिंग करेक्शन कितना होगा AB में। तो फर्स्ट वेस्टिंग ऑफ लाइन AB इज 65.45 डिवाइडेड बाय टोटल विच इज इक्वल टू 70.7 मल्टीप्लाई 0.315 डिवाइड बाय 2 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 50% डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें दोनों तरफ, ईस्टिंग में भी और वेस्टिंग में भी। और प्लस का साइन मैं यहाँ ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर विल बी 0.1458। Similarly, if we solve for the BC line, we have to change this value from 65.45 to 5.25। जब हम इसको solve करेंगे so we will get 0.0116। Similarly, if we change for CD line, अब CD line के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि ईस्टिंग में आ गया, तो टोटल ईस्टिंग की वैल्यू यहाँ पे 0.015 आ जाएगी, 71.015, ठीक है। और यहाँ पे जो ईस्टिंग की वैल्यू है 13.55। जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.0300। अब हम ईस्टिंग में 35.15 को रखेंगे, इट इज़ वेरी इजी। सो हेयर द DE लाइन के लिए हम जब ईस्टिंग कर रहे हैं तो 35.15, राइट। सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.0779 and the last line is EA के लिए हमारी ईस्टिंग है 22.315। just change this value in the numerator, so 22.315, okay, we will get this one value। अब क्या करना है आपको, इस वाली वेस्टिंग जो है आपका यहाँ पे 65.45 है, इसको आपको प्लस करना है इसके साथ and we will get this one value। Similarly 5.25 को 0.0116 से प्लस करेंगे we will get this value। ईस्टिंग में जो भी वैल्यू आपको दे रखी है 13.55, इसको आपने यहाँ से माइनस करना है, राइट। तो दिस इज ईस्टिंग। मैंने बता दिया कि माइनस और प्लस साइन आपको यहाँ देखते हुए करना है, कौन सी वैल्यू बड़ी और छोटी है, ना कि ये सोचते हुए कि कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे वेस्टिंग नेगेटिव में था तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ नेगेटिव डाल दिया और यहाँ फिर आप नेगेटिव ही कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, आपको एरर से फाइंड करना है, ठीक। उसके बाद हम करेंगे
D line के लिए 13.55 minus 0.03 we will get 13.52. 35.15 minus 0.0779 we will get 35.0721. 22.315 minus 0.0494 we will get 22.265. So अब क्या करना है आपने, देखिए मैं आपके लिए एक और चीज कर देता हूँ कि अब आपने ईस्टिंग का समेशन एंड वेस्टिंग का समेशन करेंगे, जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसका डिफरेंस कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, वी विल गेट 1.1 into 10 की पावर -4 विच इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, राइट। सो इस केस में हमने ये करेक्टेड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर विच इज द पार्ट ऑफ कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए हैं और लास्ट में हमने इसको चेक भी करा दिया। सो दिस इज योर ट्रांजिट रूल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैवर्स computation and I hope you like this lecture is very lengthy and the numerical are very lengthy, but if you practice then you will be able very simply these numerical, and I hope you will do a lot of practice of these numerical. So this is the unit second, and the unit second is also completed. So please prepare for your midterm examination. These type of numerical will be asked in your midterm examination. Thank you, have a nice day.